હવે પ્રકાશ ઉપનો છે, હવે પ્રકાશ ઉપનો છે. હવે કરું તે અસ્તુત આધાર, બલવ સુનો બિનતી. આતલા દિવસ મેં નવો ઓળખ્યા, મારા બાલૈયા માયાની લહરે મુને જોર હતી. જીવા જગાવી બાજી બરમાં, તે બાલાજીને લાગુ પાયે. સોવા તમારી તીત શબ્દ થકી, મારી દેહ આજીવ્યા શબ્દ માયે. કેની પેરે હું કરું અસ્તુતા, મારા જીવને નથી કાંઈ બલ્લા. મારી જોગબાઈ સર્વે અસ્થિર બસ્તની, કેમ વર્ણ ભૂષોવાને ચલા. આગળ જીવે કીધી અસ્તુતા, ભગવાનજીને બલી માતા. પંડિતાઈ ચતુરાઈને પ્રવીણાઈ, કિવતા માડે છે કરી ખાંતા. તે પ્રવાહી વચન જ્યારે જોઈએ, તેમાં કો છે બારે વચન. એતા દિયે અચેત થકા ઉપમા, પણ મુને સાલે તે મન. અજાન થકી દિયે બળી ઉપમા, ત્યારે જાણ્યાનો કીવો પ્રમાણ. એક વચન જો પડે મુખ પર ભાઈ, તે ત નવો જાનુ નિર્બાન. તે પણ ચિત્ત દય નવો સાવલ્યા, નહીં તો પૂર પૂજ્યો પ્રગલા. આદા ગુણ સગલા જોદ જુદવા, તેને નવો લેવા દીધું ટીપું જલ. હવે તે ગુણને કહી દીધે ઉપમા, પીત પીત બુડી બુધા. પ્રથમ તુમો બળ મંદાની, તે કાન લીધીએ નિધા. સાગર પુર ભયું રે સનંદે, તે કાન લીધું એ જલ. તે બુધ પાપની હું મેલું પર હરી, જે થઈ મોસું નિબલ. હવે રે બુધ દી હું કહું તુને, તું થાય બુધનો અવતાર. શ્રી બાલાજીને બલવ કરે, એક કિરણ મૂકે લગાર. બીજી બુધ કે આવે અમ સમ બળ, હું બુધ માય બુધ અવતાર. બુધે કરી બાલાજીને બલવી કરીશા, એ બુધ નહીં મૂકું લગાર. બુધજી રહ્યા છે આસરે, જે છે બુધ અવતાર. એ બુધજી વિના બીજા બાપડા, કોણ કાંદે એ સાર. સાર કાંદે શુદ્ધ કરીને, બાની બેહદ ગાયે. તન અવતાર તે બુધ તણો, જે રહ્યો આવીને પાયે. તે નહીં વૈકુંઠ નાથને, જે રસ બુધ અવતાર. શરણ ગ્રહ્યા બાલાજીના તણા, કાંઈ એ નિધ પામે સાર. સાર પામે સુખ ઉપાનું, તન ધન એ અવતાર. આજ લગે બ્રહ્માંડ માએ, કોઈ એ મન પામ્યો પાર. એ અવતારની ઉપમા, કાંઈ લીલા અખંડ થશે. વચન યન વિધે વિધે, કાંઈ બાની બ્રહ્માંડ ગાશે. હવે રે શ્રવણ કહું હું તુને, તુને ધનીએ કયા વચન. કાન લીધા તે વચન બચી કિન, ફીટ બુડા કરના. મંદાન તુજા ઉપર રે શ્રવણ, લેવાય તારે વલ્લા. તનીએ ધન રેડતા નવ જયું, નેટ કાન થયા નિવલા. હવે શ્રવણ તું સંભાર આપો, થાય બચી કિન બીરા. બાની જે બલવતની, ગ્રહે જે દૃઢ કરી ધીરા. બીજા બીજાના વચન સુનિયાજી, શ્રવણ કહે સંભારી. જે મનોરથ હતા મારા જીવને, તે પૂરી વાલે આશ અમારી. હવે સુનિશા હું જોપે કરી, નવો મૂકું એક વચન. એ બાની ગણું હું બલવ કરીશ, જેમ સૌ કોઈ કહે ધન ધન. હવે તુને હું કહું રે નિદ્રા, તું નીચ નિવલ નિરધાર. ગુણ સગલારી તું ફરી બલી, નવ લેવા દીદી નિધ આધાર. તું તા કેવલ માયા રૂપ પાપની, બોલ્યા લઈ તે બાથ. શ્રવણ એ તે સાવલવા ન દીધા, આલમ બળાઈ તારે સાથ. કારણ ઘણી બીજા આવે જીવાને,
જેમાં મીના બીત્યોમાં એ જાલ, જેણે નેત્રે નિદા નિરાકુ નિર્મલ, તે નેત્રે આદિ થઈ પાલ. પીત પીત પૂણી દુસ્ત પાપની, હવે તજુ તુજને નિરધાર, આગે તે અવસર ચૂકવ્યો, હવે નિરખું જીવનો આધાર. આગે નિંદ્રા થઈ નિબલ મોસું, કારણ ઉતી ગણી પર, હવે તું જીવને આવીશ ઢુકડી, કર સંસારમાં એ ઘર. નિંદ્રા કહે જ્યારે જીવ જાગ્યો, ત્યારે મેં કેમ રહે બાએ, ચરણ ફોલ્યા જ્યારે દનિતના, ત્યારે જાઉં છું લાગીને પાયે. હરુ ચડી તું ત્યારે આવી, જ્યારે મળ્યા મુને શ્રી રાજ, પીઠ પીઠ બુડી હુવન અકરમન, તું સરજી શ્યાને કાજ. પીઠ પીઠ બુડી તે દા ચૂકવ્યો, હવે કરે કાંઈક તું ભલા, જીવન જી મળ્યા જીવને, તું થાય સંસારમાં ને ચલ. હરુ ચડી કહે હું બલવંતી, મુને ન લખે કોઈએ, છાની થઈને આવું જીવમાં, પાછું તે સાજું ન હોય. જ્યારે ધની પોતે ઘર સંભારે, ત્યારે એ ચોરી કરે કેમ ચોરા, હવે અવલા માહિતી સવલું કરું, જઈ બેસું સંસારમાં એ જોરા. મને મારો બલવ મળ્યા રે બાલેશ્વરી, જાણું સેવા કીધે હરકાંત, તેને સમય આવે ઉભી તું અકરમન, પીઠ ભૂડી સ્વાંત. એ નિદ આવે કેમ સ્વાંત કીધે, કેમ બેસીએ કરાર, દ્રોઢ કીધે સગલા અંગાસું, સ્વાંત કીધે સંસાર. સ્વાંત કહે હું ત્યાં લગે હું તી, જ્યાં જીવનની નિંદ્રા હતી જોરા, હવે જાઉં છું સંસારમાં એ, તમે કરો ધની શું કલોલા. હવે રે તુને કહું લોભ લાલચી, પીત પીત બુડા અજાન, નવો કીધો લોભ ખરી નિદાનો, જેથી અરથ સરે નિર્વાણ. હવે મોથાસો તમે માયા ટુકડા, માયા લોભ લાલચ બને જોડા, લોભ આવો મારા વાલાજીમાં, જેમાં કરું રાત દિન દોડા. લોભ લાલચ કહે શોભાંક અમારો, જ્ઞાન ભલે જીવને સારા, હવે જે તમે કહ્યું અમને, તે જોજો કેમ ગ્રહું છું આધાર. પીત પીત બુડા તૃષ્ણ અવાગની, તું નિવલ થઈ નિરધાર, બીજા ગુણ સગલા ત્રપત થાય, પણ તુને કોઈ વાવો ઠણ બંધાર. હવે તુને કેમ કાઢું રે તૃષ્ણ, તો શું મારે ઘણું કામ, તૃષ્ણ આવો મારા બાલાજીમાં, જેમાં બસ કરું ધની શેરી ધામ. તૃષ્ણ કહે હું કેમ ન મૂકું, જે આત્માએ દેખાડ્યા આધાર, તમે જઈ બીજા ગુણ સાંભળો, એવું નહીં મૂકું નિર્ધાર. મોહ કહું સુન બાટડી મારી, મુને મળ્યા તા પ્રાણો આધાર. પીત પીત બુડા દુરમતી, તે તોય ન છાડ્યો સંસાર. હવે રે આવો તું બાલાજીમાં, માયા શું કરજે બીછો, ફરી જોગભાઈ આવી મારા આટમાં, હવે કેવો જોડ જોઈએ મારો મોહ. મોહ કહે મારી વાત છે મોતી, મુને જાને સૌ કોઈ, જેને ઠામે હું બેસું ત્યાંથી, અલગ ન કરી શકે કોઈ. જેની દેખાડી તમે મુને, તેને જડ થઈ બલગું આંધા, મારી બીજતા એક જ છે, બીજી ન જાણું સનંદ. હરક શોખ તમે થયો રે માયાના, પીઠ અવાગી અજાન, તની મળે તું હરક ન આવ્યો, ચાલે શોખ ન આવ્યો નિર્વાણ. નિકર તમે નિવલાઈ ઘણી કીધી, એવા અંધ તયા વાગી, હવે તમને હું શું કહું, જે જીવે ન વારે જાગી. હવે આવો તમે ખરી નિધમાં, આગે ચૂક્યા વસરા, એક લીધો લાવો શ્રી બાલાજીનો, બીજો હરકે જાગું મારે ઘર. હરખ કહે હું શું કરું, જ્યાં ધની ન લીએ ખબર, શોક કહે જ્યાં ધની નવો કહે, ત્યાં અમે કરું કે પર. જોડા અમે બને છઉ બલિયા, હવે જોજો અમારી ભાત, ધની તમે દેખાડ્યા મને, અમે તે ગ્રહું છું હરકાંત. મદ મત્સર અમે અહંકાર, તમે જોડ કીધી સંસાર, પીઠ પીઠ ગુણ બુડા એવા બલિયા,
તમે બિછોડ પાડ્યો મારે આધાર. તમે ત્રણે જોડા એક સમ થઈ કાનવ કીધી સમી વાત. જ્યારે જીવન જી મળ્યા જીવને ત્યારે તમે કાનવ કીધો ઉલ્લાસ. હવે રે તમે મારી પાસે થાઓ મને બલી મળ્યા મારો આધાર. ભલે જુદા કર જો બુદ્ધિ કરી જેમાં છાંટો ન લાગે સંસાર. ત્રણે જોડા અમે જોરાબર ચાલુ એકી વાત. બાલાજીને ગ્રહી કરીને જીવને બેલા કરી દઉં સાથ. હવે એવા જોડા સબલ તમે બલિયા મળ્યા મોસું ખોતી ભાવ. જોગવાઈ ગઈ મારે આંધતી પણ તમે ન ગયા સહેજ સ્વભાવ. માયાને મળીને રે મૂરખો મોસું થયા તમે કુડા. ફીત ફીત બુડા દુષ્ટ અભાગી એની બાતે ન થયા રૂડા. સહેજ સ્વભાવ બંને સરકી જોડા મારા જોડ સબલ તમે જવાન. જે હનિગમાં તમે થાઓ તે જીતે નિર્વાન. હવે તમે હું કીધી કહું છું મારા સબલ થાજ સુજાન. સહેજ સ્વભાવ કરજો બાલાજી શું બાલપન માં માનજો કે નિયાન. સહેજ સ્વભાવ બને અમે બલિયા જો કરે કોઈ કોટો ઉપાય. જે અમે બાટ ગ્રહું જોપે કરી તે કેને નવો પાછી થાય. હવે જોજો તમે ચોરા મારે બાલોજી ગ્રહ હું કરી ખાંટ. પૂરો પાસ દઈ રંગ ચોલનો પાડું પટોલે ભાત. મમતા તું માયા તની નિવલ થઈ નિરવાન. ફીટ ફીટ બુણી દુષ્ટ પાપની કીધી મુદની ગણી હાન. હવે મમતા આવો મારા બાલાજીમાં બીજો મુખ સરવ સંસાર. સવલ સંગાટ ન થાય મુજ પાસે મુને મળ્યા છે મારો આધાર. હું સંગાટ ના છું જો તમારી તમે લેવો એ નીદ. એ નીદ અલગી થવા ન દઉં કરો કારજ તમે સીધા. હવે તુને હું કહું રે કલ્પના ફીટ ફીટ બુડી અકરમના. ફોકતિયાની ફજીત તે કીધા કાંઈ અમને અતિ ગણ. હવે કરમ ન થા તું આવો કલ્પના સેવા માએ કર વિચાર. બાલીઓ બાલાજી મુજને મળ્યા લાવ લવ આવી માએ સંસાર. કહે કલ્પના એ કામ મારો હું કરું બીજા બીજા ન વિચાર. અંગ એકે નવો રાખું પાછું સેવાની સેવા રાખું સાર. બેર રાગ બને જોદ જુજવા સામ સામે શિરદાર. બેર કીધું તમે બલવ જીશું રાગ કીધું સંસાર. તમે મસું બુડાઈ અતિ કીધી તમને દઉં કટારી ગાય. એવો અવસર આવ્યો મારા હાથમાં પણ તમે ભૂલવ્યો મુને દાય. મારે મંડાન છે તમા ઉપર તમે કાંઠયા મોસું એમ. હવે હું કારી આવો અમ પાસે હું લાવ લઉં બાલાજીનું જેમ. જોરા કરો તમે જોડા જુજવા રાગ આવો માયા ધાર. બેર બીજે બીજે કથ નાહી શું જય બેસ માય સંસાર. બેર કયો એ શો બાંક મારો જાદની પોતે ઘર ન રાખે. અમે આ ફરવા કેમ કરી ગ્રહું જીવ ચીની ન દાખે. રાગ કહે હું રૂડી બેરે હલમલ કરું આધાર. જીવદાની બચે અંતર ટાલું તો બખાન જો આવાર. હવે બેર કહે મારી બીજા જોજો કેવી કથ નાહી કરું સંસાર. કોઈ ગુણ જો જીવશું જોર કરે તો ઉતારી બધું તરવાર. પીતા પીતા બુઢા સ્વાદ કહું તુને મુને મળ્યા તા મીઠા આધાર. ય સ્વાદ મેલીને સખિયા તું સ્વાદ થયો સંસાર. હવે રે સ્વાદ તું થાય સુહાગી જોજે બલવની મીઠાશ. જ્યારે તું આવ્યો એ માએ ત્યારે કહીએ ન કર વિજયાસ. જ્યારે કહે સ્વાદ કહે જ્યારે એ સુખ લાદ્યો ત્યારે અવક થયો મોહ જલ. ઉબલ હતો તે તલી ગયો હવે સવલો આવ્યો બલ. હવે રે કહું તુને ગુણ ના ઉતાર તે બલવ શું કીધો બ્રડ. મેં તુને જાણ્યો હતો સ્વાગી પીઠ પીઠ કમલ ફેરના ક્રોડ. ક્રોડ મેં તુને જાણ્યો પોતાનો
પણ નવો સીધ્યું તું માયેથી કામ પીઠ પીઠ બુડા દુસ્ત વાગી રહી મારા એડામાં એ હામ હવે ક્રોડ કમલ ફેરી નાખ તું ઉદ ફેર જે કમલ સંસારે એ અબો અકરમિકા થઈ બેઠો તેમ કર જેમ સૌ કો સંભારે ક્રોડ કહે હું ગનવે જોરાવર પણ ધની બિના કરું કેમ હવે જો કોઈ ગુણ જીવને ચંપાવે તે તો ત્યારે તમે કહે જો મુને એમ હવે ને કહું તું ને ચાક ચકરરા તું ચડી બેઠો જીવને માથે આપો પુનઃ ઓળખ્યા અવાગી ફોકટ ફેરવ્યો જીવ નિગાતે અંધ એવો કાં થયો રે અવાગી તે નવ શૂન્ય આતલો પોકાર પીઠ પીઠ ભૂડા ફેર ન રાખ્યો ત્યારે મળ્યા મુને આધાર મન સમ્રાટ સવાલ તું બલિયો તારા બેગનો કિયો કહું વિસ્તાર સુજ સબલ માય તું ફરતો આડો ઉભો દૃઢ પાર હવે તું માય કામ મારે છે અતિ ઘણું જોશું તારો જોર મેવાર પછ બીસ પખ માય તું ફરજે રકે અદકીન રહે લગાર સંકલ્પ વિકલ્પ છે તું માઈ તે તું કર સેવાની મન ઉમંગ આન તું અતિ ઘણી શ્રીદામદની મળવાની મન કહે મારી બાટ છે મોતી અને સકલ બીજા હું જાનું ગજા પખે ચડી બેસું માટે જીવને જોપે બસાણું જ્યારે જીવ પોતે જાગૃત ન થાય ત્યારે કરું કેમ અમે જોર અમારું ત્યારે ચાલે જ્યારે સામા જાગી બેસો તમે હવે પેરા જોજો તમે મારી કરું મારા બલનો વિસ્તાર નિધ લઈને દઉં તદકીન તો કહે જો ગુણ શિરદાર કોઈ જો કે લવી જાને અમને તો ફલ લઈ દઉં તત્કાલ સેવાની સનંદિત દેખાડું જેને ધની ન થાય અલગ કોઈ કાલ પરમ પ્રાંત કીધી તમે ભૂડી એ મન કરે બીજો કોઈએ તારતમાં અજ બાલે બાલો જીવો લખ્યા તમે આડા ફરી ભલ્યા તો એ તો આકાર તમારો ઓતરે અવાગી તો કટકા કરું તરવારે પિંજી પિંજી પુરજા કરી ભલી ભલી કાઢું એઠલ ધારે હવે જો પે થઈને જાઓ સંસારમાં એ છે તેવા થાઓ તમે જેમાં અજબાલે શ્રી બાલોજીને ઓળખી એમાં મૂલ જોત દેખું જેમાં અમે પરમ ભ્રાંત કહે સાવલો જીવાજી અમને મારો તરવારો કિયે ઠિકાને નિદા કરો તે આપો પૂકા ન સંભારો જે નિદાની પોતે નિદા પામે તે કેમ સુએ કરારે આપો પોતે ખબર ન રાખે અને ફોકટ મને મારે જ્યારે તમે જાગે જોરાબર ત્યારે અમે જાઉં છું સંસાર ભલે મળ્યા ધનીજી તમને હવે કરો અજબાનો અપાર પીઠ પીઠ લજાટું થઈ લૌકિકની બીજા બાંધ્યા કુટુંબ શુક્ર કરમ તામદની મુનિ ટેળવા આવ્યા ત્યાં તુને ના આવી શરમ દુસ્ત પાપની તે શું કીધું આગળ કરી સૌ કેમ કે પેરે હું મોએ ઉપાડીશ મારા ધની આગળ ન આવી શરમ હવે રે શરમડી કહું તુને તું જોજે મૂલ સગાઈ આગે અવસર મોટો ચૂકી હવે ફરી આવી જોગવાઈ લજા કહે હું ઘણું એ ભૂલી હવે બાલાજી શું મુખ કેમ મેલું દુસ્તર ઉપર આગળ જવું તો જેણે બોલાવી મને પહેલું પીઠ પીઠ ભૂડી આશા તું થઈ સાગરની તની મેલા બિસારી જીવને સફળ જે હાથ લાગ્યું ભૂણી તે તું બેટી હારી યા ફલ તે મૂકી કરીને નીચ બસ કાં લીધી એ દોષ સર્વે જીવને બેઠો તુને શિકામન ન દીધી હવે આ સદનીની ધની મોતી થાય સૌ બિચારી મન નહીં રાખું કોઈ આસડી હવે લેજો સુફલ સંભારી અચેત ગુણ તું આવ્યો અકરામી તાક થવા નવ દીધી
जीवन जे निदात लागी पुणा ते जुई की दी ये निदानी के बात करूं पुणा पिट पिट गुना चेत तुझा बेटा तीव्रता न आवी नहीं तो ये निदाऊं लेता अचेत कहूँ सागरनु તે જાઉં છું સાગરમાં નિજ તમારી તમે પામો ગ્રહું તીવ્રતા ભાએ પીઠ પીઠ બુડા ગુણ કહું તીવ્રતા મને મળ્યા તદામદાની એવા અવસર કોઈ નિગમે તે કીધી મોસું બુડી ગાની ભલી અવસર આવ્યો છે આત્મા હવે તીવ્રતા તું સંભારે રાત દિવસ તું જીવનને ડોળાવે એક પાવ પલમાં બિસારે तीव्रता कहूँ बलवंती जीवन दाऊँ जोरा बस करी आपूँ गण तमारो करूँ पादरा दोरा शिल संतोष आवे आवज डुकड़ा भांडो सागर दीपाल गुण सगल के तिम कर से नथी काई बीजो जंजाल शिल कहे संतोष सुन आपण ने की दाचे पाल पर्वत ताने पुर सागर न माए भेबट से नीताल अमलिया अलेख दिसे लय रो मेरे समान मच जोरावर माए चे मोटा पाल करवी ने थाम हमें बाजिए पाल खरो करी पाइयो जेम कसे नहीं लगार પછી જલ પોતે જ્યારે તામ ગ્રેસો ત્યારે સામુ શોભા થાય અપાર હવે એ પાલ અમે બાંધશું જીવજી પણ તમે થાજો તદ પર અવસર બીજી બાર નહીં આવે સવા સાત માલ્યો ઘર હવે જાગ જીવ તું જો પે બલિયા તુને કે દઉં ગાલ મેં તુને ઘણું એ ફિટકાર્યો પણ ચૂક્યો અવસર ની નાલ कठिनाई में जोई जीव तारी अति करो निकर अपार तमी धमी तमी ने ठाक्या पन नेत नव गलियो निर्धार पन नेत नव गलियो निर्धार चौपाई 115 प्रकरण 20 चौपाई 525 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती को प्रकरण 20 को हिंदी छाया। हे मेरा प्राणधार प्रियतम, अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे एक विनती सुनिए। इतने दिनों तक मुझे आपके स्वरूप की पहचान नहीं हुई, क्योंकि मायावी लहरों का प्रभाव मुझ पर अधिक था। सतगुरु धनी ने मेरी जीवात्मा को जागृत करके भ्रम दूर किया। ऐसे प्रियतम धनी के चरणों में मैं नतमस्तक होती हूँ। आपके स्वरूप की शोभा सुंदरता शब्दातीत है। मेरे शरीर की यह जीवा शब्द में सीमित है, इसलिए इस जीवा के द्वारा मैं आपकी स्तुति गुणगान कैसे करूं? मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे शरीर की रचना प्राकृतिक तत्वों अस्थिर वस्तुओं द्वारा ही हुई है, इसलिए आपके अखंड स्वरूप की शोभा वर्णन किस प्रकार करूं? पहले भी लोगों ने भगवान की स्तुति अच्छी तरह से की है। इसमें उन्हें अपनी पूरी विद्वता, चतुराई और दक्षता दिखाकर अपनी इच्छा अनुसार कविताओं की रचना की है। प्रवाह में लिखे गए उन वचनों को जब हम देखते हैं तो उन रचनाओं में कहीं कहीं गुड़, रहस्य, परमानंद, सच्चिदानंद, पूर्ण ब्रह्म आदि भी प्राप्त होते हैं। इन महत्वपूर्ण शब्दों की उपमा अज्ञानता बस दी गई है, किंतु मेरे मन में ये ऊंचे शब्द खटकते हैं। इतनी बड़ी उपमा इस दुनिया के लोगों ने मूल तत्व की जानकारी प्राप्त किए बिना दी है, तो मूल तत्व का तारतम्य होने पर मैं आपको कौन सी उपमा दूं? ऐसे एक दो वचन प्रवाही में मुख से निकलते हैं, किंतु वे उसकी वास्तविकता नहीं जानते। मैंने वेदों और पुराणों को भी नहीं सुना है, न तो मैंने कवियों की चातुर्यपूर्ण कविता सुनी है। मैंने सद्गुरु धनी के
मुखार बिंद से निकले हुए एक दो वचन ही सुने हैं। इनके द्वारा मैंने पुस्तक और प्रभाव के वचनों को जाना, अर्थात सदगुरु के वचन पुस्तक और अन्य कवियों के वचन प्रभाव मार्ग के है। धनी जी के एक दो वचन भी मैंने मन लगाकर नहीं सुने हैं, अन्यथा सदगुरु धनी का अखंड ज्ञान सागर की लहरों की समान हृदय में उमड़ रहा होता। समस्त गुण अंग इंद्रियां अपना अलग अलग प्रभाव लेकर जीव के लिए अवरोधक बन जाती है। उन्होंने ही सदगुरु धनी के वचनामृत की एक बूंद भी लेने नहीं दी। अब इन गुण अंग और इंद्रियों को मौन सी उपमा दी जाए। हे पापिनी बुद्धि, तुझे धिक्कार है। सबसे पहले तू ही वहां पहुंची थी। तूने इस अखंड ज्ञान रूपी धन को क्यों ग्रहण नहीं किया? समुद्र के प्रभाव में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों की भांति सदगुरु धनी के ज्ञान का प्रभाव उमड़ पड़ा। फिर भी उस अमृत रूपी जल को तूने क्यों प्राप्त नहीं किया? हे पापीन बुद्धि, मैं तेरा संग छोड़ रही हूँ। तू मेरे लिए निर्बल सिद्ध हुई है। हे बुद्धि, अब मैं तुझे कहती हूँ कि तुम बुद्धि के अवतार स्वरूप बन जा। धामधनी को प्रेम कर और उन्हें एक क्षण के लिए भी मत छोड़। जागृत बुद्धि प्रत्युत्तर देते हैं, ऐसी दूसरी कौन सी बुद्धि है जो मेरे समकक्ष बन सके? मैं तो वह बुद्धि हूँ जिसमें बुद्धावतार का अवतरण हुआ है। मैं इसी बुद्धि के द्वारा प्रियतम धनी के साथ प्रेम करूंगी, इसलिए मैं इस बुद्धि को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती कहती है, अक्षर की जागृत बुद्धि रास के बाद संवत 1735 हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर तक हमारे आश्रय में रही है, जिसे बुद्धावतार कहा जाता है। इस बुद्धि के सिवाय अन्य सब दया के पात्र कहे जाते हैं। इसलिए इस जागृत बुद्धि के बिना बेचारे अन्य लोग कैसे सार तत्व निकालेंगे? इसने शास्त्र पुराण की सार तत्व का निरूपण कर उनकी शुद्धि लेते हुए बेहद वाणी का गान, अखंड भूमिकाओं का वर्णन किया। धन्य है अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के इस अवतार को, क्योंकि यह बुद्धि हमारे सदगुरु धनी के चरण कमलों में आश्रय लेकर रही थी। वैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु को भी वह ब्रह्मानंद रस अप्राप्य है, जिसकी प्राप्ति अक्षर की जागृत बुद्धि को बुद्ध अवतार के रूप में हुई। इसने प्रियतम धनी के चरण कमल ग्रहण किए हैं, इसलिए ऐसे सार रूपी धन की प्राप्ति उसे हुई। तारतम्य निधि प्राप्त होने पर बुद्ध जी को अखंड सुख प्राप्त हुआ। अक्षर की जागृत बुद्धि का यह अवतार धन्य है। आज तक ब्रह्मांड में कोई भी इस प्रकार पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सका है। इस बुद्ध अवतार की उपमा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा जागने लीला तीसरे ब्रह्मांड अखंड होंगी और इसके वचन ब्रह्मांडों के प्राणी विभिन्न प्रकार से गाएंगे। हे कान, अब मैं तुझे कहती हूँ, जब धामधनी ने तुझे वह वाणी सुनाई तो तूने चतुराई से उन वचनों को क्यों ग्रहण नहीं किया? इसीलिए हे दुष्ट कान, तुझे धिक्कार है। हे कान, मेरा मुख्य आश्रय तुम्हारे ऊपर ही आधारित है। तुम्हारी श्रवण शक्ति के कारण ही सब सुनाई देता है। धामधनी के इस अखंड ज्ञान को बहाने में कोई कमी नहीं रखी, परंतु हे कान, तुम सचमुच निर्मल हो गए हो। हे श्रवण, अब तुम अपने आप को संभालो, समझदारी और बलवान बन जाओ। धामधनी की अखंड वाणी को दृढ़ता और धैर्य के साथ ग्रहण करो। कान कहते हैं, हमने धामधनी को वाणी विभिन्न प्रकार से सावधानी पूर्वक सुनी है। जो इच्छा हमारे हृदय में थी उन सबों को धामधनी ने पूर्ण कर दिया। अब मैं अच्छी तरह श्रवण करूंगा, एक वचन को भी नहीं छोड़ूंगा।
इस वाणी से मैं प्रेम करूँगा ताकि सब मुझे धन्य धन्य कहेंगे। हे निद्रा, अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू अवश्य नीच और निर्बल बन गई है। सब अंग इंद्रियों के लिए तू ही रुकावट बन गई है। तूने प्राणाधार धनी के धन अखंड ज्ञान को लेने नहीं दिया। हे निद्रा, तू तो मात्र पापिनी माया का ही स्वरूप हो। सब गुण अंग इंद्रियों को बस में कर तूने उन्हें डुबा दिया। कानों को तूने सुनने न दिया। आलस्य और जमाई तेरे साथी है। जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार जीव को घोर निंद्रा रूपी माया के मद ने अनेक प्रकार से घेर लिया। जिस आँखों के द्वारा धनी रूपी पवित्र धन देखना है, उनके आगे पर्दा बनाकर हे निद्रा, तूने आँखों की पल के गिरा दी। हे पापी निद्रा, तुझे बारंबार धिक्कार है। अब मैं अवश्य तेरा त्याग करूंगी। इससे पूर्व भी तूने प्राप्त अवसर को हाथ से खो दिया, परंतु अब तो मैं मेरे धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करूंगी। हे निद्रा, मेरे धनी जी के साथ जाने में तो तूने अपनी निर्बलता दिखाई। उस समय माया का नशा मुझ पर छाया हुआ था। अब तू जीव के पास नहीं आना, उससे दूर रहना, मायावी संसार में ही अपना घर बनाना। अब प्रत्युत्तर में निद्रा कहती है कि जब जीवात्मा जागृत अवस्था में आ जाए तब मैं किस प्रकार रह सकती हूँ। जब धामधनी के चरण कमल रूपी फल तुम्हें प्राप्त हुआ है तो मैं उन्हें प्रणाम कर विदा ले रही हूँ, अर्थात लौट रही हूँ। हे अरुचि गुण, तू भी उस समय आकर अपना प्रभाव दिखाने लगा जब मुझे सद्गुरु धनी की प्राप्ति हुई थी। हे पापी उल्टी कर्महीन अरुचि, तेरे इस विपरीत कर्म के लिए तुझे बारंबार धिक्कार है। तू किस कार्य के लिए उत्पन्न हुई है? हे पापी, तुझे धिक्कार है क्योंकि तूने इससे पूर्व प्राप्त अवसर खो दिया। अब तू कुछ बल लगा प्रयत्न कर। जीव को जीवनाधार धनी मिल चुके हैं। अब तू इस जगत में स्थिर हो जा। अरुचि उसका उत्तर देती है, मैं बलशाली हूँ, मुझे कोई भी देख नहीं सकता। मैं चुपचाप जीवात्मा में प्रवेश करती हूँ। मैं जिसको एक बार फेंक देती हूँ वह कभी भी सीधा नहीं हो सकता। जब जीव स्वामी अपने शरीर रूपी घर को संभालता है तो चोर किस प्रकार चोरी कर सकता है। अब मैं टेढ़ापन छोड़कर सीधे मार्ग पर आ गई हूँ। अरुचि से रुचि उत्पन्न करती हूँ और स्वयं संसार में जाकर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ निवास करती हूँ। मुझे मेरे प्रियतम धनी मिल गए हैं, इसलिए मैं उनकी हर प्रकार से सेवा करूँगी। ऐसा विचार कर रही थी। हे भाग्यहीन, शांत धैर्य, ऐसे अवसर पर आकर तू खड़ा हो गया। हे पापी, इसीलिए तुझे भी बारंबार धिक्कार है। धनी रूपी अखंड धन प्राप्त होने पर किस प्रकार शांत होकर बैठा जाए। सब अंगों को कार्यरत करके दौड़ते दौड़ते मैं सेवा करूं और दुनिया की ओर धैर्य धारण करूं। धैर्य कहता है कि मैं तो तब तक ही था जब तक जीव पर अज्ञान रूपी निद्रा का जोर था। अब मैं संसार की ओर से मुख मोड़ता हूँ। अब तुम अपने धनी के साथ आनंद करो। जीव लोभ लालच आदि गुणों से कहता है कि तुम दुष्ट और अज्ञानी हो, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अखंड धन रूपी धामधनी को जाते हुए तूने लोभ नहीं किया, अन्यथा तेरे सब काम सिद्ध हो जाते। हे लोभ लालच, अब तुम दोनों माया के पास मत जाओ। मेरे प्रियतम धनी को प्राप्त करने के लिए अब तुम आ जाओ, ताकि धनी के पास जाने के लिए मैं दिन रात दौड़ा करूं। लोभ और लालच कहते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है। जब तक जीव को कुछ भी पता न हो तभी तक हमारा जोर चलता है। अब आपने हमें जो कुछ कहा है, देखना कि हम
धाम धनी को किस प्रकार प्राप्त कर लेते हैं। हे अभागिनी तृष्णा, तुझे भी धिक्कार है, तू भी निश्चय ही निर्बल हो गई। अन्य सब गुण संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तुझ में भूख का भंडार छिपा हुआ है। हे तृष्णा, अब मैं तुझे किस प्रकार निकालूं? तुझसे तो बहुत बड़ा काम करवाना है। अब तू मुझे प्रियतम मिलने की प्रति सहायभूत हो जा, ताकि मैं धामधनी को अपने बस में कर सकूं। तृष्णा उत्तर देती है कि जीव ने जिन धामधनी को दिखाया है, उन्हें मैं किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगी। हे जीव, अब तुम जाकर अन्य गुण अंग इंद्रियों को संभालो। मैं निश्चित रूप से धामधनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जीव अब मोह से कहता है, हे मोह, मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मुझे मेरे प्राणाधार धामधनी मिले थे, किंतु हे पापी दुष्टमती मोह, तुझे धिक्कार है, क्योंकि इतना जानते हुए भी तूने संसार की माया नहीं छोड़ी। हे मोह, अब तुम धामधनी में आकर स्थिर हो जा और माया से अलग हो जा। मेरे हाथ से पुनः यह अवसर आया है, अर्थात सद्गुरु मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। अब मेरा मोह कितना महान योद्धा है, यह मुझे देखना है। तब मोह कहता है कि मेरी बात तो बड़ी है, मैं तुम्हें भ्रम में डालकर मोहग्रस्त कर सकता हूँ। मुझे सब कोई जानते हैं, मैं जिस स्थान पर जाकर बैठ जाता हूँ, वहाँ से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। हे जीव, तुमने मुझे धामधनी रूपी अखंड धन दिखाया, इसे मैं अंधे की तरह जकड़ लूं। मेरी यही एकमात्र पद्धति है, अन्य कोई पद्धति मैं नहीं जानता। हे हर्ष शोक, तुम दोनों माया के बन गए। हे भाग्यहीन मूर्खा, तुम दोनों को भी धिक्कार है। धामधनी सद्गुरु के मिलने पर भी तुम्हें आनंद न हुआ, और जब वे धाम सिधार गए तब भी तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ। सचमुच तुम निष्ठुरी हो और निर्बलता एवं कमजोरी का परिचय देकर ऐसे अंधे और अभागे बन गए हो। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? जीव ने भी जागृत होकर तुम्हें रोका ही नहीं। अब तुम प्रियतम रूपी अखंड सच्ची निधि की और आओ जाओ। इससे पूर्व भी तुमने अवसर खो दिया था। प्रियतम धनी से मिलने का एक लाभ तो ले लो, दूसरा लाभ तो हर्षपूर्वक अपने घर प्रेम धाम में जागृत होकर प्राप्त करेंगे। हर्ष कहता है कि मैं भी क्या करूं, जब तक मेरा स्वामी जीव स्वयं अपने आप को संभाल नहीं पाता तो मुझसे क्या होगा। उसी प्रकार शोक कहता है कि जहाँ धनी नहीं कहते वहाँ पर मैं क्या करूं। हर्ष और शोक कहते हैं कि हम दोनों शक्तिशाली योद्धा है। अब हमारी युक्ति को तो देखो, आपने हमें धामधनी का परिचय करवाया, अब हम उन्हें सब प्रकार से ग्रहण करेंगे। हे मत्सर और अहम एवं अहंकार, तुम सब इतने अधिक शक्तिशाली होने पर भी बारंबार धिक्कार के पात्र हो, क्योंकि संसार की ओर दौड़ लगाकर तुमने हमारे और धनी जी के बीच अंतर बढ़ाकर वियोग करवा दिया। तुम तीनों योद्धाओं ने सम्मति साधकर विचारपूर्वक धामधनी के साथ सीधी बात क्यों नहीं की? जब जीवात्मा को जीवन के आधार धामधनी मिले तब तुम उत्साह में क्यों नहीं आए? जीव कहते हैं, अब तुम तीनों मेरे पास आ जाओ, क्योंकि अब मुझे पुनः धामधनी मिल गए हैं। तुम अपनी संपूर्ण शक्ति द्वारा माया के साथ कुशलता पूर्वक लड़ाई करो, ताकि मुझे संसार का तनिक भी रंग न लगे। अब ये तीनों कहते हैं कि हम तीनों योद्धा बलवान हैं, अब हम तीनों एक ही मार्ग पर चलेंगे। अब प्रियतम धनी बालाजी को ग्रहण कर जीवात्मा को उनके साथ मिला देंगे। हे सहज सरल स्वभाव, तुम अपने बलवान होने पर भी मुझसे कपट भाव से मिले। मानव जीवन का यह सुंदर अवसर मेरे हाथ से चला गया, किंतु तुम नहीं गए। हे मूर्ख सहज स्वभाव,
तुम माया से मिलकर मेरे साथ झूठे कपटी बन गए। हे दुष्ट अभागी, तुम्हें धिक्कार है। इतनी सब बातें जानते हुए भी तुमसे कोई अच्छा काम न हो सका। हे सहज और स्वभाव, तुम दोनों की जोड़ी सम्मान है। मैं मेरे योद्धाओं, तुम सबल नवयुवक हो। जिसके पक्ष में जाकर खड़े रहोगे उसके जीत अवश्य होंगी। अब मैं तुम दोनों का क्रोधित होकर कहता हूँ, तुम सबल और जानकार बन जाओ। प्रियतम धनी के साथ प्रेम करो, अन्य किसी की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है। सहज और स्वभाव कहते हैं, हम दोनों बलवान हैं। कोई भी चाहे कितनी ही उपाय क्यों न करे, हम जिसको अच्छी तरह से पकड़े रहते हैं बाकी नहीं रहती है, अर्थात अवश्य पूरी होती है। मैं पुनः कहते हैं, हे जीव, तुम हमारी शक्ति को देखो। हम लोग चाह पूर्वक प्रियतम धनी को ग्रहण करेंगे और हृदय में ऐसे प्रेम रूपी गाढ़ लाल रंग लगा देंगे जो परोता रेशमी वस्त्र की भांति अमिट हो जाए। हे ममता, तुम माया के पक्ष में होकर अवश्य निर्बल हो गई है। हे दुष्ट पापिनी, तुझे बारंबार धिक्कार है। तूने मुझे बड़ी भारी हानि पहुंचाई है। हे ममता, अब तुम मेरे प्रियतम धनी की ओर आजा। संसार की अन्य विडंबनाओं को त्याग दे। संपूर्ण शक्ति के साथ तुम मेरे साथ रह जा, क्योंकि अब मुझे प्राणाधार धामधनी मिल गए हैं। ममता इसका प्रत्युत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम उस अखंड निधि धामधनी को ग्रहण करो। मैं उनसे तुम्हें अलग होने नहीं दूंगी। अब तुम अपना कार्य पूर्ण रूपेण सफलतापूर्वक पार करो। हे कल्पना, अब मैं तुझे कहता हूँ, तू अकर्मण्य आलस्य बन गई है। इसलिए हे पापिन, तुझे बारंबार धिक्कार है। तूने हमें व्यर्थ ही बहुत परेशान किया। हे कल्पना, अब तू काम करने वाली स्फूर्ति बनकर मेरे साथ आजा और धामधनी की सेवा और प्रेम में लग जा। प्रियतम सदगुरु धनी मुझे प्राप्त हो चुके हैं। अब संसार में आई हुई मैं उनसे लाभ लूंगी। कल्पना कहती है कि यह काम तो मेरा है। अब मैं भांति भांति के विचार करूंगी। मेरे किसी भी अंग को सेवा कार्य में पीछे नहीं रखूंगी। उन सबको सेवा करने की सार वस्तु श्रेष्ठ प्रेम प्रकट कर दिखाऊंगी। हे बैर और राग, तुम दोनों अलग अलग स्वभाव के हो। तुम बलवान हो, एक दूसरे से बढ़कर श्रेष्ठ भी बन सकते हो। तुमने धामधनी के साथ बैरभाव रखा और जगत के साथ प्रेम किया। तुमने मेरे साथ अति दुष्टता पूर्वक तुमने मेरे साथ अति दुष्टता पूर्ण व्यवहार किया। अब मैं तुम्हें तलवार से आहत करूंगी। ऐसा सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था, उस अवसर को भूलकर तुमने खो दिया। मेरा मुख्य आशय तुम पर टिका हुआ है। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अब तुम गर्जना करते हुए मेरे पास आओ ताकि मैं प्रियतम धनी का यथार्थ लाभ ले सकूं। तुम दोनों योद्धा अलग अलग प्रकार से अपना पराक्रम बताओ। हे राग, अब तुम प्राणाधार धामधनी के प्रेम में लग जा। हे बैर, अब तुम अलग अलग कठिनाइयों को साथ लेकर संसार में जाकर बैठ जा। इसके प्रत्युत्तर में बैर कहता है, इसमें हमारा क्या दोष है? जबकि स्वामी जीव ही स्वयं अपने घर का ख्याल न रखे। जब तक जीव निर्देश न करे तब तक मैं क्षण क्षण में बदलने वाले इन गुणों को कैसे पकड़ूंगा? राग कहते हैं कि अब मैं प्राणाधार धामधनी के साथ अच्छी तरह हिल मिल कर रहूंगा। जीव तथा धामधनी के बीच के अंतर को दूर करूंगा। तब तुम हमारे किए हुए कार्य की प्रशंसा करना। बैर कहता है, अब मेरी भी रीति देखो। मैं किस प्रकार संसार के प्रति कठोर बनता हूँ। यदि कोई भी गुण जीवात्मा को अपना बल दिखाएगा तो उसे तुरंत ही तलवार से काट डालूंगा। हे स्वाद, अब मैं तुझे धिक्कारता हूँ। मुझे अमृत रूपी प्रेम रस का पान कराने वाले
प्रियतम धनी मिले थे। हे शौकीन स्वाद, ऐसे दिव्य स्वाद को छोड़कर तू संसार के पंच विषयों का भोगी बन गया। हे स्वाद, अब तू धनी के प्रेम रस का आस्वाद लेकर सुहागी बन जा और धाम धनी की मधुरता को देख। यदि तू धनी के इस मधुर प्रेम का स्वाद सकेगा तो कभी भी दूसरे स्वाद की अपेक्षा नहीं रखेगा। स्वाद कहता है, जब मुझे धनी का सुख प्राप्त हुआ तब मोहजल का सुख अभक्ष्य बन गया। अर्थात मायावी सुखों की और अरुचि पैदा हो गई। मुझ में जो उल्टी बुद्धि और बल थे वे मिट गए। अब धामधनी के ओर से सीधे प्रेम का बल मिल गया। हे क्रोध, अब मैं तुझे गुणों को हटाने वाला कहूंगी। तुमने प्रियतम धनी के साथ ईर्ष्या की, मैंने तो तुझे भाग्यशाली सुख को भोगने वाला माना था, परंतु हृदय कमल पर विपरीत भाव डालने वाले हे क्रोध, तुझे बारंबार धिक्कार है। हे क्रोध, मैंने तो तुझे अपना ही माना था, परंतु तुझसे एक भी काम सिद्ध नहीं हुआ। हे दुष्ट अभागी, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तेरे कारण मेरे हृदय की चाह पूरी नहीं हुई, मेरी मनोकामना अधूरी रह गई। हे क्रोध, अब तू हृदय कमल के उलटेपन को फेर दे, संसार की ओर से उल्टा कर धनी जी के सम्मुख कर दे। सचमुच तू ऐसा अकर्मण्य होकर क्यों बैठा है? कुछ ऐसा कर जिससे सब तेरी ही प्रशंसा करें। क्रोध कहता है कि मैं अधिक शक्तिशाली हूँ, परंतु अपने स्वामी जीवात्मा की अनुपस्थिति में मैं क्या करूं? अब यदि कोई भी गुण अवरोध डालकर जीव को दबाएगा तो मुझे इस प्रकार दोष कहना। कुमार के चक्की भांति घूमने वाले हे मन, अब मैं तुझे कह रही हूँ, तू जीव के सिर पर चढ़ बैठा है। हे दुर्भागी, तू अपने आप को पहचान नहीं सका और अकारण जीव को परेशान करके जन्म मरण के चक्र में डाल रहा है। हे अभागे, तू ऐसा अंधा क्यों बन गया है? तुम्हें सदगुरु धनी की इतनी पुकार सुनाई नहीं दी। हे दुष्टा, तुझे धिक्कार है। जब मुझे मेरे प्राणाधार सदगुरु धनी मिले तब भी तूने भवसागर के इस चक्र से अपना मुख नहीं मोड़ा। हे मन, तू समर्थ, शक्तिशाली और बलवान है। तेरे गति का मैं क्या वर्णन करूं? तू स्वतः प्रकाशमान परम धाम में ऊपर नीचे दसों दिशाओं में प्रत्येक स्थान पर दौड़ लगाता था। अब मुझे तुझसे बड़ा काम करवाना है। हे पड़ोसी मन, अब तेरी शक्ति देखूंगी। अब तू प्रेम धाम के 25 पक्ष में भ्रमण कर और आधे क्षण के लिए भी इस माया में भ्रमित मत हो। हे मन, संकल्प और विकल्प ये दोनों गुण तेरे में है। अब तू उनको सेवा की ओर उन्मुख बना। अपने में अति उत्साह भरकर धामधनी को मिलने की इच्छा कर। मन कहता है, मेरी बात बहुत बड़ी है और मैं सभी ढंग जानता हूँ। हाथी पर सवार महाबत की भांति मैं जीप पर सवार होकर उसे अपने बस में कर लेता हूँ। जब जीव स्वयं जागृत न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हे जीव, मेरा बल तभी काम करता है जब तुम जागृत होकर मेरे सामने बैठ जाओ। हे जीव, अब तुम मेरे रीति को देखो। मैं अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। यदि तारतम ज्ञान रूपी अखंड धन लेकर तत्काल तुझे दे दूं तो मुझे सर्वगुणों का अग्रणी मानना। यदि कोई मुझे प्रयोग करना जान ले तो मैं उसे तुरंत ही फल दिला सकता हूँ। मैं सेवा शुश्रूषा की अनेक रीति दिखलाता हूँ, जिससे धनी एक क्षण के लिए भी अलग न हो। हे ब्रह्म और भ्रांति, तुमने जैसा अदम काम किया है वैसा कोई नहीं करेगा। तारतम के प्रकाश में सदगुरु धनी की पहचान की, फिर भी तुम मेरे लिए अवरोधक बनकर खड़े हो गए। हे दुर्भागी, यदि तुम्हारा कोई आकार होता तो मैं तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देती और उन टुकड़ों को महीन कर तलवार की उल्टी धार से बारीक चूर्ण बना देती। अब अच्छी तरह संसार में जाकर रहो और जैसा संसार है
वैसा तुम भी बन जाओ। जिस तारतम्य के प्रकाश में मैंने प्रियतम को पहचाना है, अब मैं उसी प्रकाश से मूल तेज अपने परमात्मा को भी देख लूं। तब ब्रह्म भ्रांति कहते हैं, हे जीव सुनो, जरा भी संकोच किए बिना मुझे तलवार से काट डालो, परंतु तुम किस स्थान पर जाकर अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हो? स्वयं को क्यों नहीं संभालते? जिसका स्वामी स्वयं अखंड धनी की प्राप्ति कर ले, वह सेवक आराम से कैसे सो सकेगा? तुम अपने आप की संभाल नहीं रखते और व्यर्थ ही हमें मार रहे हो, तिरस्कृत कर रहे हो। हे जीव, जब तुम स्वयं जागृत हो जाओगे तभी हम संसार की ओर जाएंगे। यह अच्छा हुआ कि तुम्हें सद्गुरु धनी मिल गए। अब तुम अखंड ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। हे लज्जा, तू भी संसार के साथ मिल गई, इसलिए तुझे भी धिक्कार है। तदुपरांत तू परिवार के कर्म रूपी बंधन में बंध गए। धामधनी सद्गुरु हमें बुलाने आए, परंतु उस समय तुझे शर्म नहीं आई। हे दुष्ट पापिनी, तुमने क्या किया? अब आगे मैं क्या करूंगी? धनी जी को क्या उत्तर दूंगी? धामधनी के समक्ष मेरा मस्तक कैसे उठ जाएगा? धामधनी के समक्ष मेरा मस्तक कैसे उठ पाएगा? तेरे कारण मुझे धनी के समक्ष शर्म का अनुभव नहीं होगा। हे शर्म, अब मैं तुझे कहती हूँ, तू प्रेम धाम के मूल संबंध को देख। पहले भी तुमने बड़ा मौका गवा दिया, अब तुम जागृत होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लज्जा कहती है, मैंने तो बड़ी भूल की, अब मैं प्रियतम धनी की ओर कैसे देख सकूंगी? जिस दुष्ट ने इससे पूर्व मुझे मार्ग भ्रष्ट किया, वो जलकर खाक हो गए। हे आशा, तुझे बारंबार धिक्कार है, क्योंकि तुम भी मोह सागर की बन गई। तूने धनी के साथ मिलाप तो किया, परंतु बाद में उन्हें भूलकर छोड़ दिया। इस प्रकार जीव की सफलता के आधार हस्तगत हुए थे। हे पापिनी, तू उन्हें खो गई थी। सद्गुरु धनी द्वारा प्रदत्ता उस अखंड धन को छोड़कर इस संसार की सुखों जैसे तुच्छ वस्तुओं को तूने क्यों ग्रहण किया? इन सब का दोष जीव को लग गया है, क्योंकि तूने समय पर उपदेश नहीं दिया। अब धामधनी जी को प्राप्त करने की बड़ी आशा लेकर मैं विचार मग्न रहूंगी। किसी भी प्रकार की इच्छा की कमी नहीं रखूंगी। इसीलिए हे जीव, जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी संभाल रखो। हे अकर्मण्य अचेत तन गुण, तेरा आगमन भी हो चुका है। तूने हमारी इच्छा पूरी होने नहीं दी। जीव को सद्गुरु रूपी धन प्राप्त हुआ था। हे पापी, तूने उस सद्गुरु से मुझे विमुख कर दिया। इस सद्गुरु रूपी धन की मैं क्या बात करूं? हे अचेतन गुण, तुझे धिक्कार है। तेरे होते हुए तीव्रता की भावना पैदा नहीं हुई, अन्यथा मैं सद्गुरु रूपी अखंड धन ग्रहण कर लेती। अचेतन गुण प्रत्युत्तर में कहता है, मैं तो मोहजल का हूँ, इसलिए सांसारिक माया की ओर ही जा रहा हूँ। तुम अपना धन प्राप्त कर लो, मैं तो तीव्रता की बाह पकड़ता हूँ। जीव कहता है, हे तीव्रता गुण, तुझे भी बारंबार धिक्कार है। मुझे धामधनी प्राप्त हुए थे, ऐसा सुंदर अवसर क्या कोई अपने हाथों से जाने देगा? हे पापी, तुमने मेरे साथ अति नीचता का व्यवहार किया। अब पुनः वही धनी मिलन का सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हे तीव्रता, अब तू सचेत हो जा। रात दिन जीव को धनी की ओर दौड़ाती रहना, ताकि वह एक क्षण के लिए भी धनी जी को नहीं भूले। तीव्रता कहती है, यह सच है कि मैं बलवंती हूँ। जीव की सहायता के लिए मैं अपना बल लगा देती हूँ। तुम्हारे धनी जी को बस करने के लिए मैं जीव को सीधा कर देती हूँ। हे शील संतोष गुण, अब तुम मेरे पास आ जाओ। इस मोह सागर के चारों तरफ पाल बांध लो। तुम जैसा कहोगे सारे गुण वैसा ही करेंगे। अब अन्य कोई जंजाल नहीं है। शील गुण कहता है, हे संतोष, तू सुन, हमें मोह सागर पर किनारा बनाना है, परंतु यह मोह जल का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि बड़े पर्वत को भी बहा सकता है।
इसमें विभिन्न प्रकार के सत रज तम आदि के भंवर दिखाई देते हैं तथा काम क्रोध आदि लहरें भी मेरु पर्वत के समान ऊंची उठकर उछल रही है। इच्छा तृष्णा आदि बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे हैं। ऐसे स्थान पर हमें बांध बनाना है। अब मजबूत नींव डालकर बांध बनाना है ताकि वह तनिक भी नहीं हिले। समय बीतने पर जब माया मोह रूपी जल अपने स्थान पर पहुंचकर रुक जाएगा तो हम सब की शोभा बढ़ेंगी। श्री संतोष कहते हैं, हे जीव, अब हम इस बांध को मजबूती से बना रहे हैं। अब तुम तैयार हो जाओ। ऐसा अवसर फिर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए परम धाम में तथा यहाँ सुंदर साथ के बीच शोभा प्राप्त कर लो। हे बलशाली जीव, अब तू अच्छी तरह से जागृत हो जा। तुझे कटु शब्द कैसे कहूँ? मैंने तुझे बहुत धिक्कारा है, फिर भी तू निश्चय ही अवसर चुक गया। हे जीव, मैंने तेरी कठिनाई को देखा। तू सचमुच अत्यंत कठोर है। धामधनी समझा कर थक गए, किंतु तू तनिक भी नहीं पिघला। हे जीव, मैंने तेरी कठिनाइयों को देखा। तू सचमुच अत्यंत कठोर है। धामधनी समझा कर थक गए, किंतु तू तनिक भी नहीं पिघला। चौपाई 115, प्रकरण 20, चौपाई 525। राजश्याम कहिए, राजश्याम कहिए, जय विधि रखे श्याम, ते विधि रहिए, जय विधि रखे श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मोरा मकुट सोहे प्रीत बरसन मोहे, मुरलिया धूर की घनश्याम की सब जय जय बोलो। बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बाकी सूरत वाके प्यारे मूरत वाके, नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। नटवरानंद की ब्रजचंद्र की गोविंद की सब जय जय बोलो। बाकी बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बाकी बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। पापी अधर्मी तारे
भक्तों का रखवाले पापी अधर्मी तारे, भक्तों का रखवाले दीन जानो प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। दीन जानो की प्रतिपाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, बांके बिहारी के कृष्ण मुरारी के, गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। गिरधर गोपाल की नंदलाल की दयाल की सब जय जय बोलो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।